Hello students, how are you? I hope all you will be fit and fine. आप देख रहे हैं कोरोना किस कदर अपने पैर पसार रहा है, लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो बच्चों, यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पर बहुत सेफ होंगे और फाइन होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लिटरेचर पोर्शन से पोइट्री लेकर आई हूँ, जो कि CBSE स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और अभी आपकी क्लासेस भी बंद हो गई हैं, तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई कैसे पढ़ाई करें। तो इंग्लिश का तो बच्चे ट्यूशन भी नहीं लेते और इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है ये लिटरेचर पोर्शन। उससे पहले बच्चों, मैंने आपके लिए यहीं पर 2 चैप्टर और प्रोवाइड करा दिए थे प्रोज सेक्शन से ही, द लास्ट लेसन एंड डीप वाटर। बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करें। आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। दिस इज फ्रॉम लिटरेचर पोइट्री सेक्शन। Aunt Jennifer's Tigers. The title of the story, Aunt Jennifer's Tigers. This is a poem by Adrienne Rich. Students, first of all, I would like to tell you about the poetess. The poetess Adrienne Rich was born in 1929 in Baltimore, Maryland, USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays, and 3 writings. A strong resistance to racism and मिलिट्रिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। उसके वर्क में एक रेजिस्टेंस मीन्स अपोज, रेसिज्म मीन्स जातिवाद। जैसे आजकल मेल और फीमेल का बहुत चल रहा है, मेल एंड फीमेल। The poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraints of married life of women experiences. ये जो उनकी पोएम है Aunt Jennifer's Tigers, ये एड्रेस करती है constraints मीन्स होता है जो confinement, बाउंडेशंस। जो एक मैरिड लाइफ में विमेन के साथ जो बाउंडेशंस बन जाती हैं, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। बिफोर मैरिज भी बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, बट आफ्टर मैरिज ये और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए आपको मैंने बताया। एंड व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, ये जो आपकी पोएम है यही सजेस्ट करती है द कंस्ट्रेंट्स ऑफ a married life of a woman. Notes Aunt Jennifer's Tigers. Aunt Jennifer's Tigers are in a panel. Panel means one after one, one after one, one after one, one after one. These are many tigers, and they don't fear of men. The tigers do not fear of men. Express her inner desires. और Aunt Jenny, the tigers are the symbol of her inner desire. Everybody wants self independence, everybody wants a free life. The tigers, they do not have any fear of men, walk in the panel freely. These express her inner desire.
Aunt Jennifer's tigers represents women in America or our contemporary societies, as we see in other societies, not only America, but because she belonged to America, so she presented the American women's life who were caught under the oppressive hands of patriarchal society. Patriarchal means patriarch. Patriarchal means father is the head of the family. The head of the family. So it is called patriarchal. Prancing knitted tigers. They are the tigers. Aunt Jennifer's tigers are prancing. Prancing means bouncing. The tigers are symbol of terror, fearless, brave and assertive. Terror. These are symbol. उनको देखकर डर तो लगता है, but these are fearless. उनको आंट जेनिफर्स के जो टाइगर्स हैं उनको किसी का भी डर नहीं है, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं. दे आर ब्रेव. ब्रेव भी हैं और असर्टिव. ना उनको किसी का डर है, जो अपनी मर्जी के वो खुद ही मालिक हैं. Colors. The colors of the tigers present freedom for greater than her. कि येलो कलर है, येलो कलर इसमें दिया है, और उनका जो ग्रीन कलर है, ग्रीन उनका पैनल है, तो उसमें वो फियर करते हैं. तो द ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स द फॉरेस्ट who is the symbol of vital and joy, and yellow color of the tigers represents freedom for greater than her. Aunt Jennifer's tigers presents the condition of the women in America or other societies who were caught under the oppressive hands of patriarchal society. Patriarchal means पिता की, because father is the head of the family and dominates the other member. The prancing knitted tigers. They were knitted tigers. Knitted means made by wool. They present desire of free spirit. The tiger, वो घूमते हैं, उनको किसी का डर तो होता नहीं है, because क्योंकि टाइगर्स जो होते हैं वो उनको देखकर इतना डर लग जाता है. तो they present the desire of a free spirit and pines for freedom. Who pines for freedom? जिसको फ्रीडम तो मिली नहीं है, बट उसके मन में एक इच्छा रहती है कि भाई मेरे को फ्रीडम मिले. एंड द फिंगर्स, आंट जेनिफर्स फिंगर्स, they who are fluttering through the wool. जो फ्लटरिंग फिंगर्स हैं, फ्लटरिंग मीन्स शेकिंग, फ्लटरिंग मीन्स शेकिंग और ट्रेमलिंग. जब किसी पर बर्डन होता है, जो अनहैप्पी होता है, तो अगर वो कोई काम करता है तो हाथ कांपते हैं. तो ऐसे ही आंट जेनिफर की जो फिंगर थी, दे ऑल्सो फ्लटर्ड थ्रू द वूल, और दे रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट्स. कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स स्ट्रगल. जो आंटी के अंदर स्ट्रगल चलता था कि सारे दिन टाई टाई करते रहते हैं, अगर मेरे को जरा सी भी फ्रीडम मिल जाए ना
तो सबको सुधार दूँ, एक ही दिन में सुधार दूँ। शी इज़ नर्वस एंड फेयरफुल, वो नर्वस भी है, फेयरफुल भी है, एंड इसीलिए सो फाइंड्स हार्ड टू पुल एंड शी लॉस, इट रिप्रेजेंट्स द लॉस ऑफ आइडेंटिटी। घर के काम काज में जो एक फीमेल होती है वो इतनी बिजी हो जाती है कि वो अपनी आइडेंटिटी को तो खो ही देती है, उसका अपना वजूद नहीं होता। शादी से पहले वो जानी जाती है कि उसकी बेटी, और शादी के बाद वो जानी जाती है कि उसकी बहू, उसकी वाइफ, ये उस परिवार से है, तो उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या हुई, वो तो फैमिली की हुई या फिर जो मेल्स हैं उनकी हुई। She is unable to tolerate the weight of uncle's wedding band और ring। वेडिंग बैंड और रिंग क्या होती है? रिंग आप सभी जानते हैं, जब एंगेजमेंट होती है तो लेडी को एक रिंग पहनाई जाती है, तो लड़की को एक रिंग पहनाते हैं, और इसीलिए वो इसको उस समय उसको मतलब उस वेडिंग बैंड के का जो वेट है उसको टॉलरेट नहीं कर पा रही है, और उसको ऐसा लगता है इट इज़ टू हैवी टू बियर। अपने हैंड्स में जो उसने वेडिंग बैंड पहना हुआ, रिंग पहनी हुई है, वो इस समय उसको बहुत हैवी फील होती है। एंड इट रिप्रेजेंट्स द मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर, जो एक मैरिज के बाद में लेडी के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। एंड शी इज़ अनेबल टू रियलाइज हर फील पोटेंशियल एज अ वुमेन इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। पता नहीं मेरे को इस सबसे कब मुक्ति मिलेगी, मतलब एक फीमेल की, एक लेडी की ये फीलिंग्स होती हैं जब ज़्यादा ही वो जैसे पेरेंट्स होते हैं, फादर होते हैं, वो कहते हैं नहीं रात में कहीं नहीं जाएगी लड़की, या फिर वहाँ नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी, ये क्या होती है? दीज आर कॉन्स्ट्रेंसेस। शी वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशन थ्रू हर आर्ट। अब वो क्या करती है, अपनी जो फीलिंग्स हैं उस जो उसकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होती हैं तो उनको रिप्रेजेंट करती है निटिंग के द्वारा। निटिंग में क्या बनाती है वो? टाइगर्स कैसे? ऑफ वूल। वेडिंग बैंड, एंड वेडिंग बैंड क्या है उसमें? ये सिंबॉलिक पोएम है टोटल, और वेडिंग बैंड्स रिप्रेजेंट द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मैरिड लाइफ। जो वेडिंग बैंड होता है, भैया अब तो ये बंध गए, अब तुम्हें ना कहीं जाना है ना किसी से बोलना है, और अब जो उसकी इच्छा होंगी, जो हमारे काउंटर पार्ट की इच्छाएं होती हैं, वो हमें सभी को उनका रेस्पेक्ट करना पड़ता है, नहीं करो तो फिर घर में लड़ाई होती है। इन द थर्ड पैरा, आंट्स डेथ रिप्रेजेंट्स कंप्लीट सबमिशन टू हर सप्रेशन, कि आंटी अपनी उस फैमिली में ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी करते हुए वो डेड हो जाती है। एंड हैंड्स, उसके जो हैंड्स हैं इस समय बीइंग टेरिफाइड, ऐसे लगते हैं डरे हुए से हैंड्स उसके लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इमोशंस को फीलिंग करते हैं, उसकी जो इमोशंस होती हैं। और इसमें बच्चों ट्रांसफ़र एपिथेट जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो यूज़ हुआ है। कि वैसे तो इमोशंस हैं बट उसके अंदर कोई इमोशन वैसे नहीं थी, केवल वो अंदर ही अंदर घुटती थी, दम घुटता था उसका। फ्री फ्रॉम माइजरेबल कंडीशन, अब वो क्या चाहती थी कि इस कंडीशन से मैं आज़ाद हो जाऊं। वेडिंग रिंग्स जो उसने फिंगर्स में पहनी हुई थी वो ये था कि भाई अब हम इसके साथ कन्फाइंड हो गए हैं, तो जैसा ये कहेगा वैसा ही करना पड़ेगा। तो दीज वेडिंग रिंग्स रिप्रेजेंट्स कंप्लीट कंट्रोल ऑफ हर ड्रीम्स, उसके जो ड्रीम्स हैं अलाइव, और वो रिप्रेजेंट करते हैं इमॉर्टल डिज़ायर को। किसके रूप में? जो टाइगर्स हैं वो थोड़ी ना एक्सपायर होते हैं, टाइगर्स नहीं मरे, क्योंकि टाइगर्स तो वूल के बने हुए थे, और डेड कौन होती है बच्चों? जो लाइव थिंग्स होती हैं वो डेड होती हैं। तो द पोएम डिपिक्ट्स द कॉन्स्टेंस ऑफ वुमेन इन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। कॉन्स्टेंस मैंने आपको बता ही दिया है, कंट्रेंस मीन्स बाउंडेशंस।
इनर डिजायर ऑफ फ्री स्पिरिट, ये कौन करता है? ये क्या है? ये टाइगर्स हैं। उसने जो टाइगर्स बनाए हैं, दीज रिप्रेजेंट्स द इनर डिजायर ऑफ द फ्री स्पिरिट। अब देखिए टाइगर इस तरह से पैनल में बने हुए हैं, वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन, एक पैनल में है। तो दीज आर सिंबल्स ऑफ टेरर, फियरलेस एंड गैलेंट्री। गैलेंट्री मीन्स क्या होता है? ब्रेव, वीरता और बहादुरी। क्योंकि एक टाइगर ही है ऐसा, टाइगर और लायन, जो कि किसी से नहीं डरते। द टाइगर्स एंड देयर लैंड मोर वाइटल, क्योंकि टाइगर किस में रहती हैं? डेनिजन, जंगल में, फॉरेस्ट में। मोर वाइटल, वाइटल मीन्स लाइफ, which gives us life, potential। और लाइफ। एंजॉय अ सेंस ऑफ फ्रीडम, ये घूमते हैं फ्री, कहीं पे भी चले जाते हैं, तो ये किस चीज को एंजॉय करते हैं? अ सेंस ऑफ फ्रीडम। येलो ब्राइट टोपाज कैनॉट्स द, येलो ब्राइट, येलो कलर का जो ब्राइट कलर होता है, ये करता है कि भाई हम बिल्कुल फ्री हैं, फ्री। जैसे सन होता है आकाश में, तो ऐसे ही बिल्कुल एकदम हम लोग भी फ्री हो जाएं। द ग्रीन रिप्रेजेंट्स वन ऑफ स्प्रिंग, ग्रीन कलर जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग को, हैप्पीनेस, जॉय एंड रिबर्थ। क्योंकि स्प्रिंग सीजन आता है तो उसमें क्या होता है? हैप्पीनेस, जॉय एंड रिबर्थ। द पोएम इंट्रोड्यूस द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, फिजिकल एंड मेंटल, ये वूल रिप्रेजेंट्स द फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस ऑफ आंट। Here you are looking knitting pins, knitting sticks, knitting sticks यानी कि सलाई। आपने देखी है बच्चों, मम्मा भी कभी कभी स्वेटर बुनती होंगी, तो ये क्या है? ये सलाई है। तो these represents the loss of identity, कि अपनी आइडेंटिटी वो भूल चुकी है। और ये दिस इज वेडिंग रिंग ऑफ अंकल, तो इट इज अनेबल टू टॉलरेट द वेडिंग बर्डन। ये अब बर्दाश्त नहीं होता, काश कि मेरी इनसे शादी ना होती। स्टेंजा वन रिप्रेजेंट्स, देखिए दीज आर टाइगर्स, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रिंस अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर्स के जो टाइगर्स हैं, प्रेंस मीन्स बाउंस और स्प्रिंग और जंप करते हैं अक्रॉस द स्क्रीन। ये स्क्रीन बनी हुई है, इसमें ही जंप करते हैं, वो एक स्क्रीन में जंप करते रहते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, these are bright topaz denizens means citizens। क्योंकि टाइगर कहाँ रहता है बच्चों? जंगल में। और तो यही कहा गया है कि, और जंगल कैसा होता है? ग्रीन। तो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये जो ब्राइट कलर के टोपाज यानी कि येलो कलर, येलो। ये टाइगर्स किस कलर के हैं? येलो कलर के। और टाइगर्स कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में। तो दे डू नॉट फियर ऑफ मैन बीनीथ द ट्री, क्योंकि ये इनको इसका डर नहीं है कि ये ट्रीज के नीचे जो लोग हैं वो हैं। तो बीनीथ मीन्स होता है डाउन या अंडर। जंगल में लोग आ गए तो उनको मार देंगे, क्यों?
क्योंकि ये तो पैनल में बने हुए हैं, पैनल में है, ये लिविंग बीइंग तो है नहीं। नॉन लिविंग है ये, तो इसलिए इनको डर नहीं है कि ये लोग मार देंगे इनको। दे पेस इन स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी। पेस मीन्स स्टेप या मूव, शिवरलिक मीन्स गैलेंट्री। ये कैसे घूमते हैं? बिल्कुल बिना डरे, निडर होकर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं। और इसीलिए इनको डर नहीं है। किस लिए डर नहीं है? क्योंकि ये तो बने हुए हैं वूल से। स्टैंजा 2 रिप्रेजेंट्स द वेडिंग बैंड। Stanza 2, this is wedding band. Ring है, obviously you are looking a ring here. This is wedding band. It reminds marriage responsibilities weigh her down, कि आंटी के ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि जिससे वो बिल्कुल दब चुकी है, डाउन हो चुकी है। एंड अनेबल टू रियलाइज हर पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स शक्ति, स्ट्रेंथ। एज अ वुमेन इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, क्योंकि वो एक लेडी है तो फीमेल को तो कोई राइट्स होते ही नहीं है। हालांकि मोदी जी ने आजकल बहुत सारे राइट्स दे दिए हैं कि घर की महिला मुखिया है, और गर्ल चाइल्ड को भी इन्होंने एम्पावर किया है। तो आज के समाज में उतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, फिर भी हम गांव वगैरह में देखते हैं, उस लाइफ में देखें तो फीमेल के पास आज भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल जो है वो बहुत वीक हैं मेंटली और फिजिकली। अरे अगर हम उनको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाएंगे तभी तो वो स्ट्रांग बनेंगी। हर जगह को वो या तो अपने फादर पर डिपेंड होती हैं कि कहीं पर भी जाओ तो अपने भाई के साथ जाओ, कहीं पर भी जाओ अपने फादर के साथ जाओ। ऐसा नहीं है, फिर तो वो गर्ल्स जो है हमेशा वो बेचारी वीक ही बनी रहेंगी। आजकल से एरोप्लेन से लेकर साइकिल तक सब कुछ फीमेल चलाती हैं। हर एक डिपार्टमेंट में देखिए फीमेल हर एक डिपार्टमेंट को संभाल रही हैं। बट कई जगह आज भी जो फीमेल्स हैं उनकी कंडीशन इतनी स्पॉइल है, दे हैव मैनी रेस्ट्रिक्शंस इन लाइफ। अब ये देखिए, यू आर लुकिंग अ वेडिंग बैंड। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स रेस्ट्रिक्शंस ऑफ लाइफ, कि बस यू आर कन्फाइंड विद हिम, अब तुम इसके साथ बंध गए और जैसा ये कहेगा वैसा ही तुम करोगी। बेटे मैं जो गांव में ही क्यों, जो कुछ घरों में माएँ वगैरह होती हैं, मॉम्स, वो ये संस्कार देती हैं कि बेटा अपने पति के साथ जाना, अपने पति के से पहले मत खाना, जैसा भी हो अपने पति पर ही डिपेंड रहना। तो बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। आंट जेनिफर्स के जो टाइगर्स हैं वो किसके बने हुए हैं? जब वो उनको बना रही, आंट जेनिफर्स की जो फिंगर्स हैं, जब वो उसको बना रही थी, जब वूल से वो निटिंग कर रही थी, तो वो ये जो सलाई है, आप क्या देख रहे हैं, ये निटिंग स्टिक्स। निटिंग स्टिक्स यानी कि सलाई। और उसके हाथ जो थे वो कांप रहे थे उसको बनाते समय। जब वो फ्लटरिंग मीन्स बताया था आपको शेकिंग, और टेरिफाइंग, ट्रेम्बलिंग।
Fluttering means terrifying. Trembling. और शेकिंग, थर 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 कांपना। तो जब वो वूल से, ये निटिंग पिन से, निटिंग स्टिक से जब ये बना रही थी इनको, टाइगर्स को, तो उसकी ये किस चीज़ की बनी हुई है बच्चों? ये आइवरी की है। आइवरी मीन्स मेड ऑफ एलिफेंट टीथ। आइवरी मीन्स मेड ऑफ एलिफेंट टीथ, हाथी के दांत से बनी हुई थी। तो इनको भी, फिर भी इतनी, हाथी के दांत का मीन्स है कि दीज वर सो लाइट बट दे वर हार्ड टू पुल, बहुत मुश्किल से वो खींचनी भारी पड़ रही थी। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये दिस इज वेडिंग बैंड, as I have told you in my previous slide कि this is wedding band, this is a ring। तो massive means होता है heavy, heavy weight। अंकल के जो wedding band का, इसका जो weight था heavy लग रहा था उनको, और this was unable to bear, sits heavily upon Aunt Jennifer's hand। और ये जो wedding band का जो है वो था वेट, वो आंट जेनिफर के हैंड पर बहुत मुश्किल से ही टॉलरेट कर पा रही थी। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeal she was mastered by। जब आंटी मर जाती है, डेड हो जाती है, तो उसके टेरिफाइड हैंड्स ऐसे ही गिर जाएंगे। will lie, lie means fall। फिर भी स्टिल रिंग्ड, रिंग उनमें अभी भी रहेगी, क्योंकि रिंग तो जब कोई निकालेगा तभी तो निकलेगी। और डील्स ये रिप्रेजेंट करते हैं कि शी वॉज मास्टर्ड बाय, कि वो अपने हाथों की खुद मास्टर थी। बट इच्छाओं की वजह से वो मास्टर नहीं रही है। स्टैंजा थर्ड, आंट्स डेथ, सिंबल ऑफ कंप्लीट सबमिशन ऑफ सप्रेशन। कंप्लीट सबमिशन ऑफ सप्रेशन यानी कि वो बेचारी, उसने इतना काम किया, इतना टॉलरेट किया हर चीज़ को कि वो मर गई। इसके जो हैंड्स हैं, फिंगर्स, इसकी जो फिंगर्स हैं, दीज सिंबलाइज टेरिफाइड हैंड्स एज दे हैव इमोशंस, की डरे हुए हैं, डरे हुए हैं तो इसका मतलब उनमें इमोशंस तो हैं। और बाइंड्स हर टुक कंप्लीट कंट्रोल, उसके हाथ में जो उनके उसके हाथ में जो रिंग्स थी, दे बाइंड्स हर ऑर्डिल्स, इट मीन्स दे वर कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ अंकल। हर ड्रीम्स, अब हर किसी की आंखों में एक ड्रीम होता है, तो इसीलिए विशेस विल कंटिन्यू टू लिव एज, इसलिए उसने, ये जो टाइगर्स हैं, टाइगर्स रिप्रेजेंट्स हर इमॉर्टल लाइफ and because they keep on prancing। The tigers in the panel that she made, अब ये जो टाइगर्स उसने बनाए थे पैनल में, ये पैनल में जो उसने टाइगर्स बनाए थे, एक वन आफ्टर वन, पैनल मीन्स वन आफ्टर वन, उसने जो टाइगर्स बनाए थे, The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and afraid। ये जो पैनल्स में उसने टाइगर्स बनाए थे, ये बिल्कुल prancing करेंगे, क्योंकि इनको तो किसी का डर तो है नहीं, because they are lifeless object। They are lifeless objects। और they will go on prancing, prancing means springing।
और बाउंसिंग। एंड अनएफ्रेड, अनएफ्रेड मीन्स ब्रेवरी से, बिल्कुल बिंदास, ये फिर भी ऐसे ही घूमते फिरेंगे, इनको किसी का डर नहीं है। द राइम स्कीम, of the poem. A B B C C D D